Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 11. In my previous 3 lectures, we completed our topic of foreign direct investment. Today we are starting capital budgeting. This is basically related with our foreign direct investment क्योंकि इसमें आपकी जो कैपिटल बजटिंग की जाती है that is purely based upon mega projects. So that is why I have tried to make a link and a hierarchy of our topics from globalization, foreign direct investment to capital budgeting. अब इनमें दरमियान जो next जो points हमारे आएंगे we will later on discussed in our further topics. So that is why I have tried to make a hierarchy of topics so that you can understand easily. Before directly going to this topic, I just give you an overview what we discussed in my previous lectures about FDI's foreign direct investment. What is basically a foreign direct investment? We discussed in detail how a home country's company MNC makes of FDI's foreign direct investment in the other countries. So one country that is making a foreign direct investment, that becomes a parent company, whereas the other country that is accepting FDIs, that becomes your host country. So what are basically the motives for FDIs? क्या उनके पीछे reasons होती हैं, क्या उनको motives होते हैं, क्या objectives होते हैं, so that they go for FDIs. हमने इसमें cost related पढ़े थे और revenue related motives पढ़े थे और काफी डिटेल में हमने जिक्र किया था. Then we discussed about the benefits of international diversification. Why a company goes for international diversification? क्या उसकी reason होती है क्यों international diversification की तरफ जाते हैं? We already know about diversification, making a portfolio. आप एक related business के साथ अपने आप को अपना business engage नहीं रखते. You try to make a diversification. It means that the reason behind when a company is sustaining a loss in one type of business, it may not be necessarily that the company is making loss in another project. अब जब एक इंडस्ट्री पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्राइसिस आता है, तो बाकी उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती हैं, वो सेफ जोन में चली जाती हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं होता इस वजह से. So that is why companies normally go for international diversification. Local diversification भी important है और international diversification क्योंकि वो एक ज़्यादा बड़े लेवल पे होती हैं, उसके इफेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं. So that is why they go for international diversification. So what are the forms of FDIs? We discussed in detail acquisitions versus greenfields investments. We already know acquisition means that one company is already running, so the parent company purchase the already existing operations of another company, so that is your acquisition. Whereas greenfields are that kind of investment in which business is started right from the scratch. बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाता है, हर चीज को नए सिरे से establish किया जाता है. If for example that is a factory, land नए सिरे से परचेज की जाती है, वहाँ पर प्लांट नया लगाया जाता है, एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए जाते हैं. एक्विजिशंस में ये चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, एक कंपनी बाहर से आकर दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है. Then we have seen a shift to services. Why company is moving from manufacturing area to a services area, and we have seen a lot of benefits कि आपको कोई वहां पर लैंड परचेज नहीं करनी पड़ती, कोई प्लांट नहीं लगाना पड़ता, आपको कोई स्टोरेज का नहीं करना पड़ता, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज ऑल द एमएनसीज टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. तो आप किसी भी तरीके से वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है. तो वाई कंपनी गोज फॉर सर्विसेज? बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस. देन वी हैव सीन टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. कौन कौन सी आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की टाइप्स हैं. देन वी हैव सीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हमने 2 एक्सट्रीम्स इसमें देखी थी, एक इंटरवेंशन और एक फ्री मार्केट. अब इंटरवेंशन में ये हो सकता है कि आप बेसिकली जो एक कंट्री की
सॉवरेनिटी है उसका जो हिडन ऑब्जेक्टिव है वो हो सकता है कि आपने उसको एक्सप्लॉइट करना, उनकी पॉलिसीज को एक्सप्लॉइट करना, डोमिनेट करना किसी तरीके से। फ्री मार्केट में आपने देखा है कि देयर इज अ फ्री मार्केट, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप हो चुके हैं। वो इंस्टीट्यूशंस जो एस्टैब्लिश हुए हैं उसमें आपके पास WTO है। देन वी हैव सीन अ प्रैग्मेटिक नेशनलिज्म, शिफ्टिंग आइडियोलॉजी, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ FDIs। इसमें आपने होस्ट कंट्री बेनिफिट्स देखे, होस्ट कंट्री कॉस्ट देखे, देन होम कंट्री बेनिफिट्स देखे और होम कंट्री कॉस्ट देखे। देन वी हैव सीन डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज के गवर्नमेंट पॉलिसीज ही डिसाइड करती हैं कि वेदर वी शुड गो फॉर अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और वी शुड रिस्ट्रिक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो दीज वर द टॉपिक्स दैट मेजरली वी डिस्कस्ड। इसमें फर्दर हमने एलेबोरेशंस भी की, फर्दर कुछ और भी टॉपिक्स थे, बट दैट वर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दीज पॉइंट्स दैट आई हैव गिवन यू एन ओवरव्यू। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल बजटिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैपिटल बजटिंग? लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बजटिंग, आप बजट बनाते हैं। बजट होता क्या है बेसिकली? बजट्स आर द एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। अब हम गवर्नमेंट लेवल पे बजट बनाते हैं, आपका गवर्नमेंट बजट होता है। आप प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनके बजट्स होते हैं। फिर इवन इफ यू आर इन योर होम यू आल्सो मेक एन इनफॉर्मल बजट कि these are your expenses and these are your source of revenues। आप बजट हर लेवल पर आकर बनाते हैं। अब जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसमें आपके पास आपके रेवेन्यूज, बेसिकली वो रेवेन्यूज नहीं होते, आपके सोर्सेज होती हैं वो, और एक्सपेंडिचर्स के आपने कहां कहां पे ये बजट को एलोकेट करना है। उसमें आप कहते हैं कि जी ये आपका जो है वो डेवलपमेंट के लिए है और ये आपका नॉन डेवलपमेंट के लिए है। मतलब दीज आर एक्चुअली द एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। अब गवर्नमेंट का बजट थोड़ा सा वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होता है, प्राइवेट का रेवेन्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें वेलफेयर कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप एनुअल बजट्स बनाते हैं, आप मंथली बजट्स बनाते हैं, सेमी एनुअल बनाते हैं, क्वार्टर बनाते हैं, वीकली बनाते हैं, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स। तो ये आपके एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल बजटिंग इट मींस दैट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अब वो इन्वॉल्वमेंट जो है आपकी, जो आपने बजट बनाना है उसमें कितने आपने इन्वेस्टमेंट करने हैं और इन रिटर्न आपको कितना वापस आएगी अमाउंट। सो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कैलकुलेशंस कि आप बजट बना रहे हैं। अब वो बजट कैपिटल बजट है। कैपिटल बजट मींस कि दैट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वो ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपने करनी है, कहां पे करनी है, कैसे करनी है। देन आई विल गो बैक अगेन माई प्रीवियस लेक्चर्स कि यू नीड टू मेक अ कैपिटल बजटिंग फॉर योर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने जा रही, इज इट अ स्मॉल अमाउंट, इज इट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट? नॉट एट ऑल, दिस इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। सो दैट यू नीड टू मेक अ कैपिटल बजटिंग, और वो कैपिटल बजटिंग आपको बताएगी कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है और आपको ये इन्वेस्टमेंट कितने सालों में रिटर्न हो जाएगी, किस कंट्री के अंदर वो कैपिटल बजटिंग आपने करनी है। अब ये सारी चीजें आपके जहन में आ रही है। So we are saying budgeting is basically your expected revenues and expenses। जब कैपिटल बजटिंग के ऊपर जा रहे हैं तो these are expected revenues and your expenditures। आप एक्सपेंस से एक्सपेंडिचर्स की तरफ चले गए, आप बड़ी अमाउंट का इसमें जिक्र कर रहे हैं। So now what is capital budgeting? Because you need to make FDIs। आपने वहां पे प्लांट लगाना है, आपने लैंड परचेज करनी है, आपने वहां पे स्टोर्स बनाने हैं। सो दैट रिक्वायर्स अ वेरी बिग इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। तो आपको अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करनी है, किस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करनी है, किस कंट्री के किस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करनी है, और आपकी टारगेट मार्केट कौन सी होगी। ये सारी की सारी चीजें आप उसकी एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे नहीं है कि जी पाकिस्तान इज अ वेरी गुड कंट्री फॉर FDIs।
कंपनीज कहेंगी कि ओके वी हैव बीन इनवाइटेड फॉर एफडीआई सो वी शुड मेक एन इन्वेस्टमेंट. नो, दे विल मेक अ क्रिटिकल एनालिसिस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. आप वहां पर देखेंगे कि हमें रॉ मटेरियल वहां पे सस्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां पे लेबर हमें सस्ती मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और फिर हम जब प्रोडक्ट्स बना देंगे तो फिर उसकी सेल कहां पर होगी. दीज आर ऑल क्रिटिकल क्वेश्चंस व्हेन अ कंपनी इज मेकिंग एफडीआईज. सो capital budgeting defined. Capital budgeting are investment appraisal. Basically you are making an appraisal. Should we make an investment? कितनी की जाए, कैसे की जाए, उसका आउटपुट क्या होगा, रिटर्न क्या मिलेगा. So all these are questions included in capital budgeting. So capital budgeting is the planning process. Capital budgeting is a planning process used to determine whether an organization's long-term investment. So here is a very important point. Long-term investment. So that is why it is related with FDIs. मैं ये और भी होती हैं, ये आपके नेशनल लेवल पर भी होती हैं, बट आई एम जस्ट रिलेटिंग इट विद द FDIs ताकि आपको पता चले कि आपने इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं. इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आप अगर एफडीआईज में जा रहे हैं तो एफडीआईज में आपके पास जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है आपने प्रॉपर उसका प्लानिंग प्रोसेस से गुजरना है. सो व्हाट दे आर सेइंग, इट इज अ प्लानिंग प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमिन वेदर एन ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज न्यू मशीनरी, आपने न्यू मशीनरी इंस्टॉल करनी होगी, रिप्लेसमेंट मशीनरी अगर वो एब्सोलीट हो गई है, खत्म हो गई है, जाया हो गई है, डेप्रिसिएट हो चुकी है, अब आपने नई लगानी. सो रिप्लेसमेंट मशीनरी एंड न्यू प्लांट. मशीनरी नहीं है, अब आप प्लांट पे बात कर रहे हैं, आप बड़े प्लांट की बात कर रहे हैं. न्यू प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर वर्थ परस्यूइंग. आप यहां पर अप्रेजल कर रहे हैं कि आप ये जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, क्या आपको वाकई ही ये कर देनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के नहीं करनी चाहिए. इट इज एक्चुअली एन अप्रेजल एंड असेसमेंट दैट वेदर वी शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट और नॉट. आप इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो क्या आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं करेगा. ये आप कैपिटल बजटिंग करते हैं. देन इट इज बजट फॉर मेजर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. आपके लिए ये जो कैपिटल बजटिंग होती है दैट इज अ मेजर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स ये इन चीजों के लिए आप अप्रेजल कर रहे होते हैं, आप बजट्स बना रहे होते हैं. आप देखें गवर्नमेंट लेवल पे आपका बजट बनता है सालाना, एनुअल बजट होता है जो जून में प्रेजेंट होता है, स्टार्ट होता है 1 जुलाई से. सो इट मीन्स व्हेन यू आर मेकिंग अ बजट दिस इज एन एक्सपेक्टेशंस दैट व्हाट वी आर सपोज टू डू. जब कंपनी लेवल पर बात करते हैं आप लोग तो यू से कि ईदर इट इज फिजिबल टू मेक एन इन्वेस्टमेंट और नॉट, ईदर इट इज फिजिबल टू मेक एफडीआईज इन दैट कंट्री, इन चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया. विच कंट्री इज सुटेबल फॉर एफडीआईज. वहां पर हम प्लांट लगाएं तो क्या वो सुटेबल है कि नहीं है. अब एक कंट्री के लिए एफडीआईज इन चाइना वो सूटेबल हो सकता है, बट दैट मे नॉट बी सूटेबल फॉर द अदर कंट्री. द रीजन इज दैट कि इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स. अब अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास फंड्स बहुत ज्यादा है तो दैट माइट बी सूटेबल चाइना एज एन एफडीआई. लेकिन किसी और कंट्री के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सिंगापुर, दैट माइट नॉट बी सूटेबल चाइना फॉर एफडीआईज. The reason is that कि Chinese companies are not as mature as US companies. क्योंकि वो अभी मैच्योर हो रही है तो वो कहेंगी कि we should target some other country जहां पर बाकी कंपनीज काम ना करें. अब चाइना के अंदर तो सारी यूएस बेस्ड, यूरोपियन बेस्ड कंपनीज काम कर रही, तो सिंगापुर की कंपनी अगर जाएगी तो वहां पे क्या वो बेनिफिट ले सकेगी. सो दीज आर द असेसमेंट्स बिफोर मेकिंग एफडीआईज. एफडीआई से पहले ये सारी की सारी आपकी असेसमेंट्स होती हैं कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना और कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की जाए, हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी. अब
वो किस चीज के लिए असेसमेंट हो सकती है? वो आपकी नई मशीनरी के लिए हो सकती है, दैट कुड बी फॉर अ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, दैट कुड बी फॉर अ न्यू प्लांट, फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, फॉर मे बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. So budgets are made, budgets are prepared for these reasons. When you have a heavy investments, it means we are making capital budgets. We have some other kinds of budget as well. For example, we have a cash budget that is for your regular course of business. But when we talk about capital budget, it means we are talking about heavy investments. So again, what is capital budgeting? Capital budgeting is the process by which the firms decides which long term investment to make. अब यहां पर वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है. आप कैपिटल बजट बना सकते हैं किसी और कंट्री के लिए भी कि वहां पे इन्वेस्टमेंट की जाए. बेसिकली यू आर मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो दैट इज व्हाई दे से दैट इट इज अ प्रोसेस बाय विच फर्म्स मे बी MNCs or MNEs decides which long term investment to make. Then capital budgeting projects, for example, potential long term investments are expected to generate cash flows over several years. अब आप ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम करें तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी करनी पड़ेगी. वी डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट. जब हम होस्ट कंट्री और होम कंट्री के कॉस्ट और बेनिफिट्स देख रहे थे, वी हैव टॉक्ड अबाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स. An FDI, a company who wants to make an FDI in the other country, that needs to make a heavy investment, initial investment. और उसके बाद उसको वो आप रिटर्न देखेंगे कि इसके आउटफ्लोज इन सब्सिक्वेंट ईयर्स कितने होंगे. अब यहाँ पे डिसीजन शुरू हो जाएगा कि आपका हैवी इन्वेस्टमेंट इतनी, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, उसके बाद रिटर्न्स कितना हो रहा है, कितना रिटर्न्स आपको मिलेगा. सो व्हाट दे आर सेइंग, कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लोज ओवर सेवरल ईयर्स. अब प्लांट लगा टोयोटा का काफी साल पहले, उसके बाद क्या हुआ, अब वो उनको रिटर्न मिल रहा है वहां पे. तो उन्होंने यहां पर कैपिटल बजटिंग की कि वेदर वी शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान और वी शुड इन्वेस्ट समवेयर एल्स. सो दे decided okay we should make an investment. उनका कैपिटल बजटिंग उन्होंने की, असेसमेंट होगी. then they made another analysis whether we should make investment in Lahore or Karachi. Karachi is considered the business hub for Pakistan, so they thought that this is much better to make investment in Karachi rather than making investment in Lahore or some other cities of Pakistan. बहुत बड़ा सिटी है, बिजनेस हब कहा जाता है उसको. so decision to accept or reject a capital projects depends on analysis of cash flows generated by a project and its cost. अब यहां पर वो ये बता रहा है कि decision to accept or reject a capital budgeting project depends upon the analysis, कि आपने अब उसका एनालिसिस करना है आपकी कैश फ्लोज के ऊपर. सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट्स. आपने एक इन्वेस्टमेंट तो कर दी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपकी हो गई. देन इन subsequent years initial investment was your outflow, whereas your subsequent years that will provide you the outflows. अब आप यहां पे उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि for how many years we will make an inflows of funds, inflows of cash. आपको इनफ्लोज कितना होगा, तो आप यहां पर एनालिसिस कर रहे होते हैं उसका. वी हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर कैपिटल बजटिंग, जिसमें आप देखते हैं कि वेदर वी शुड मेक फॉर FDIs आर नॉट. वी हैव अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. इसके थ्रू आपको पता चलता है, ये डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं. आप सिंपल एक परसीव नहीं करते कि आपने जनरल एनालिसिस किया, मार्केट में गए, देखा डिमांड है या नहीं है, यू मेक एन इन्वेस्टमेंट. There is a proper calculations, proper methodologies which are being used in the market, used by the companies, और उनसे फिर वो जो methods हैं जो companies adopt करती हैं वो फिर आपकी books में publish होते हैं, तो जिनको आप पढ़ते हैं. फिर अब यहाँ पे कुछ से आप familiar होंगे. So we will talk about only those which are in which you are familiar about it. Basically we are not doing any calculations. मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कैसे होते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है.
सो फर्स्ट वन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। आप देखते हैं कि आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, यहां पर आप कैलकुलेशंस करते हैं, ये अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी में आप कैलकुलेट करते हैं उसको। देन पे बैक पीरियड, दिस इज इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। पे बैक पीरियड के आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितने अरसे में वापस आ जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल यू मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 billion initial investment, and you want to check that how long it will take to pay back this 1 billion, तो आप यहां पर पे बैक पीरियड यूज करेंगे। सो बेस्ड अपॉन दिस कैलकुलेशन you calculated that it will take 5 years to pay back this initial investment. उनको 5 साल लगेंगे इस सारी की सारी $1 billion की इन्वेस्टमेंट को पे बैक करने में। अब जो 6th ईयर होगा, ये आपका 6th ईयर अब आपको यहाँ पे अर्निंग्स जनरेट करके देना शुरू कर देगा। दैट वुड बी इन एक्सेस ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। So payback period is used to calculate that how many years it will take to pay back our total investment, that initial investment that we had made. अब इस initial investment में that might be cost your plant, then building, land, stores, and many more things. So payback period, I just want to say just that this payback period tells you that how many years it will take to pay back your initial investment. Then net present value, this is again important. Net present value actually tells you that when you have an inflows and when you have an outflows, what is basically your net present value. इस वक्त आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इसके लिए डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज किए जाते हैं। यू बेसिकली सी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज और मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज होती हैं। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको कितने आपने इन्वेस्टमेंट की, अब आपको आउटफ्लोज होते जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड आउटफ्लोज कितने, उन सबको इकट्ठा करते हैं और एक डिस्काउंट रेट यूज करके फिर आप चेक करते हैं कि ओके नाउ दिस इज एक्चुअली अ नेट प्रेजेंट वैल्यू वी शुड इन्वेस्ट एंड इट विल टेक दिस अमाउंट टू रीच अप टू दिस ऑप्टिमम लेवल। वो क्या होगा ऑप्टिमम लेवल कि आप इस पर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। वी हैड सम अदर स्लाइड्स एज वेल, उसमें हम डिस्कस ज्यादा डिटेल से करेंगे। देन वी हैव अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर कैपिटल बजटिंग। देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR इसको बोलते हैं, कि आपने इन्वेस्ट किया तो आपको बेसिक जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना होगा। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आप जब कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कब वापस होगी और इसका कितने आपको इनफ्लोज होंगे। आउटफ्लो आपका एक ही है, दैट इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देन इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स यू हैव एन इनफ्लोज, तो ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बताएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसमें आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर भी शामिल करते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह भी शामिल की जाती है। देन यू मेक अ प्रॉपर एनालिसिस। देन एक्विवेलेंट एन्युटी, माइट बी यू स्टडीड, या आप सब्सिक्वेंट जो आपकी सेमेस्टर्स हैं उसमें आप पढ़ लें शायद एन्युटी क्या होती है। दैट इज एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, तो आपने कितनी पेमेंट करनी है, कितनी आपको रिसीट्स होंगी वो आपको बताती है। रियल ऑप्शन वैल्यूएशन, ये आप वैल्यूएशन कर रहे होते हैं उसके थ्रू पता चलता है। सो बेसिकली वी हैड पे बैक पीरियड, net present value and internal rate of return. These are the methods which are used for calculation of capital budgeting. Okay, either you should go for a project or you would reject this project. तो ये आपको बताते हैं methods कि आपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, ये कंट्री आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। सो सब्सिडी वर्सेस पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट कि व्हाट इज अ सब्सिडी एंड व्हाट इज अ पेरेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस कैपिटल बजटिंग पर्सपेक्टिव, शुड द कैपिटल बजटिंग फॉर अ मल्टीनेशनल MNC जिसको आप बोलते हैं प्रोजेक्ट बी कंडक्टेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सब्सिडरी that will administer the project or the parent that will provide most of the financing. अब यहां पर आपने सब्सिडी बना दी,
आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर उनकी ऑलरेडी एक सब्सिडरी चल रही है, तो अब जो प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए जा रहे हैं आप लोग, तो क्या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होली सोली इनकम्प्लीट सब्सिडरी के पास होगी, या फिर उसकी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी फाइनेंसिंग, उसका अप्रेजल्स दैट वुड डू बाय द पेरेंट कंपनी? तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ये उन्होंने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने से पहले उन्होंने देखना होता है. देन द रिजल्ट्स में वेरी विद द पर्सपेक्टिव टेकन बिकॉज द नेट आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज टू द पेरेंट कैन डिफर सब्सटेंशियली फ्रॉम दोज टू द सब्सिडरी. अब आपके पास होस्ट कंट्री और होम कंट्री, ये होम कंट्री में आपके पास पेरेंट कंपनी है और होस्ट कंट्री में आपके पास सब्सिडरी है, ये कंपनीज चल रही हैं. अब अगर आपने इनफ्लोज देखना है तो यहां पे इनफ्लोज दोनों का डिफरेंट होगा. अगर पेरेंट के पास सारी की सारी अमाउंट जाएगी तो दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द इनफ्लोज विच इज प्रिवेलिंग इन द होस्ट कंट्री टेकन बाय द सब्सिडरी. यहां पे दोनों के पास डिफरेंट होगी. द रीजन इज दैट बेसिकली वी हैव अ डिफरेंट टैक्स स्लैब्स. आपके पास अब कोई भी कंपनी विच इज वर्किंग इन पाकिस्तान हैव अ डिफरेंट टैक्स रेट्स, और एनी कंपनी दैट हैज बीन मेड एन एफडीआईज इन पाकिस्तान, और वो वापस अगर पैसे लेकर जाना चाहते हैं तो उनका टैक्स रेट डिफरेंट होता है, क्योंकि कंट्रीज नॉर्मली रिस्ट्रिक्ट करते हैं फंड्स की आउटफ्लोज पे. क्योंकि अगर फंड्स आउटफ्लो होना शुरू हो जाएं तो फिर कंपनी की जो अपने पेमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होती हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं. इसलिए आप एक हद तक फंड्स को आउटफ्लो कर सकते हैं, इससे ज्यादा कंट्री से बाहर नहीं भेज सकते. उसके ऊपर फिर जो टैक्स स्लैब्स, उनके ऊपर जो रेट्स हैं वो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं. सो व्हाट दे आर सेइंग, रिजल्ट्स में वेरी विद द पर्सपेक्टिव टेकन बिकॉज द नेट आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज टू द पेरेंट कैन डिफर सब्सटेंशियली फ्रॉम दोज टू द सब्सिडरी. हो सकता है पाकिस्तान के अंदर 20% टैक्स रेट हो, लेकिन आपने अगर बाहर भेजने हैं पैसे तो वो हो सकता है 30% या 35% या 40% हो. अगर 100 रुपीज अर्न किया है, कोई भी 100 रुपीज अर्न करेंगे तो 20% टैक्स लगा इस पे, तो बाकी 80 रुपीज बच गए होस्ट के पास. लेकिन अगर उन्होंने भेजना है पेरेंट के पास तो ये 40% अगर टैक्स रेट है तो 60 फिर किसके पास जाएगा? पेरेंट के पास. दैट इज टेकन, दिस डिसीजन इज टेकन बाय द होस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट, ताकि फंड्स यहीं पे रहें, यहीं पे इन्वेस्ट होते रहें और फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती रहे. सो दैट इज बेसिकली सब्सिडी वर्सेस पेरेंट पर्सपेक्टिव. देन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, differences in cash inflows is due to tax differentials. As I already told you what is the tax rate on remitted funds, ये मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया हुआ है. Regulations that restricts remittances. अब for example few years back in Spain FDIs were invited, different countries made a huge FDIs in Spain, but then what happened, government of Spain decided to restrict the outflow of funds from Spain. They said you are not allowed to make outflow of funds, but you can make again investment in Spain. आप further investment should be made in the Spain ताकि outflow उससे ना हो. So what I want to say कि आप स्पेन की गवर्नमेंट ने इनफ्लोज को तो बहुत ज्यादा इनकरेज किया, बट दे रिस्ट्रिक्टेड आउटफ्लोज. उन्होंने कहा कि यू कैन मेक री इन्वेस्टमेंट व्हाट यू हैव अर्नड इन स्पेन. आप उसकी री इन्वेस्टमेंट करें, आप एक्सपोर्ट करें, प्रोडक्शन स्पेन के अंदर ही करें, लेकिन उससे एक्सपोर्ट करें. आप फंड्स को एक हद से ज्यादा बाहर नहीं लेके जा सकते. सो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा देती हैं ताकि फंड्स बाहर ना जाएं, यहीं पर इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे, यहीं पे फर्दर इन्वेस्टमेंट हो. फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो उनका इकोनॉमिक लेवल बेहतर होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी. सो देन एक्सेसिव रेमिटेंसेस, द पेरेंट में चार्ज इट्स सब्सिडरी वेरी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव फीस. अब यहां पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इज गिवन बाय द पेरेंट कंपनी टू द सब्सिडरी.
लेकिन वो कहते हैं कि आपने इसके अगेंस्ट हमें एक नॉमिनल फी वट एवर जो भी देनी है, लेकिन अगर सारे की सारी एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट कंपनी ने करनी है तो पेरेंट कंपनी उससे फिर एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस चार्ज करेगी। ये सारे के सारे डिसीजंस क्या हो रहे हैं, ये आपकी कैपिटल बजटिंग के लिए हो रहे हैं। कैपिटल बजटिंग की आपने इन्वेस्टमेंट्स की, ये सारे के सारे आप कैपिटल बजटिंग से पहले डिसाइड कर रहे होते हैं इन चीज़ों को कि आप उस कंट्री के अंदर जाएंगे तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या टैक्स रेट्स हैं, अगर फंड्स आपने इनफ्लो करना है तो क्या उनके टैक्स रेट्स हैं, आउटफ्लो करेंगे तो फिर क्या टैक्स रेट्स होंगे उनके ऊपर, और इसके अलावा गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस क्या लगा रही है, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शंस है, या आप रॉ मटेरियल वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर कंसिडर्ड व्हेन दे आर मेकिंग ए कैपिटल बजटिंग, व्हेन दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट्स। ये सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है, उसके बाद फिर बजट्स बनाए जाते हैं आपके। एंड मोर इंपॉर्टेंटली योर एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। नॉर्मली FDIs are avoided in those countries which they have a very fluctuating exchange rates. अब पाकिस्तान में 2008 में if you could remember the dollar rate was 100 rupees, $1 was equal to 60 rupees. लेकिन for the time being जो साल गुजरते गए हैं उसके बाद आपकी जो एक्सचेंज रेट था वो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट होता रहा, पाक रुपीज डेप्रिशिएट होता रहा, उस डेप्रिसिएशन से आपका 100, 105 तक डॉलर्स पहुंच गए। तो क्या FDIs इन चीजों से पहले नहीं सोचती कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर, दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन डॉलर्स। अब डॉलर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी 1 बिलियन, जिस तरह मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया था कि दे आर मेकिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान $100 बिलियन विद $100 बिलियन। लेकिन जब वापस करने की बारी आएगी तो उस वक्त अब ये हो सकता है वो सोच रहे हो कि 60, जब आपका 60 रुपीज का डॉलर था अब 100 रुपीज का हो चुका है, तो वापस जब जाएंगे तो उनको डॉलर्स कितने मिलेंगे, उनको तो डॉलर्स कम मिलेंगे। सो दे थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग इन दोज कंट्रीज वेयर देयर इज अ फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स एंड द करेंसी इज कंटिन्यूसली डेप्रिशिएटिंग। सो दैट इज बेसिकली एन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। अब यहां पर आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाएं कि क्या होता है ये एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, ये किस तरह इफेक्ट करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो दीज आर बेसिकली द पेरेंट एंड सब्सिडरी पर्सपेक्टिव इन विच दे डिसाइड वेदर दे शुड गो फॉर FDIs। एंड इन FDIs फिर वो सोचते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका पे बैक पीरियड क्या होगा, कैसे उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू चेक करना है या आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू चेक करना है। देन ये चीजें कैलकुलेट होने के बाद फिर आप देखते हैं कि उनका टैक्स रेट, अब ये सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं। अब टैक्स वो तो जाहिर शामिल होगा, वो तो आपने कैलकुलेट करना है, लेकिन रेगुलेशन इज अ सब्जेक्ट मैटर। अब यहां पर आपका ये क्वालिटेटिव मैटर है, इसमें आपने रिस्ट्रिक्शंस देखनी है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर वापस किस तरीके से आएगी, वहीं पे तो नहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वहां पर फंड्स को रेमिटेड करने में कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। फिर उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करेगा, सब्सिडी करेगा, ओके फाइन। अगर पेरेंट करेगा, पेरेंट्स ने फंड्स प्रोवाइड करने हैं तो दे विल चार्ज अ हाई फी, तो फिर आपके पास उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगी कि नहीं रहेगी। देन वी हैव एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स ज्यादा होंगी तो वहां पर FDIs थोड़ा सा रिलक्टेंट होती हैं, और जहां पर फ्लक्चुएशंस नहीं होती वहां पर थोड़ा सा इनकरेज किया जाता है FDIs को। कैन यू सी दिस स्लाइड? थोड़ा सा इस स्लाइड पर गौर करें कि किस तरह फंड्स रेमिट किया जाता है पेरेंट के पास। दैट स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर। फर्स्ट पॉइंट, कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द सब्सिडरी। अब इन्वेस्टमेंट होगी, FDIs होगी। अब टोयोटा मोटर्स दे इनिशिएटेड their FDIs, they made a company with the Toyota Motors in Pakistan and then they started operations. Now cash flows generated by the subsidiary, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी और सेल्स शुरू हो गई। अब कैश फ्लोज जनरेटेड बाय सब्सिडी, यहां पर उन्होंने रेवेन्यूज जनरेट कर लिए, तो क्या होगा आपके पास आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज टू सब्सिडी आ जाएगा कि आपके पास यहां पर प्रॉफिट आया, यानी
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT आ गया। अभी इस एरिया पे मैं नहीं जा रहा, आई एम जस्ट फोकसिंग इन दिस एरिया, दिस होल एरिया। आपने रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, देन यू हैव अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया उसमें से जो आपने लोन लिए हुए थे फॉर एग्जांपल, देन यू हैव अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ चुके हैं। अब अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स आपने फॉर एग्जांपल 30% था, 40% था, वो पे किया। अब आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आपके पास कैश फ्लोज आ गई हैं। सो दैट इज कॉल्ड योर अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। देन कैश फ्लोज रेमिटेड बाय सब्सिडरी। अब आपने कैश फ्लो रेमिट कर देने हैं बाय द सब्सिडरी। क्या? आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज रेमिटेड बाय सब्सिडरी। किसको? कन्वर्जन ऑफ फंड्स टू पेरेंट करेंसी। अब जापानीज येन, जापानीज येन आपने पाक रुपीज को कन्वर्ट किया किस में? जापानीज येन में, और फिर आपने उसको नेक्स्ट फर्दर आपने ट्रांसमिट कर दिए, आपने रिमिट कर दिए पेरेंट कंपनी में, टोयोटा मोटर्स जापान में। एक तो ये सीरीज बनती है, सीरीज दैट स्टार्टेड, कंपनी मेड एन FDIs इन पाकिस्तान, देन दे स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑपरेशंस, FDI स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑपरेशंस। उसके बाद उन्होंने सेल्स शुरू की, सेल्स के बाद उन्होंने जो उनको सेल्स हुई साल के एंड पे, दे कैलकुलेटेड देयर सेल्स एंड देन after that they deducted their expenses. After deduction they have earning before interest and tax, they deducted their interest. उसके बाद जो अमाउंट उनके पास आ गई that was earning before tax, they deducted their tax, what was the percentage of tax, वो उन्होंने उसमें से माइनस की। अब आपके पास earning after tax आ गई। एक सिनेरियो ये है कि that amount should be remitted back to the parent company। अब उन्होंने उसको अगर भेजना है तो दे नीड टू कन्वर्ट पाक रुपीज इनटू जापानीज येन। वो ऐसे नहीं हो जाएगा, देयर इज ऑलवेज अ ट्रायंगल, यू हैव पाक रुपीज, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द डॉलर्स, US डॉलर्स, एंड देन अगेन दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू द जापानीज येन। तो ये एक सिनेरियो बनता है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि फंड्स जनरेटेड, कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द सब्सिडरी। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेगी चीजें कि कॉर्पोरेट टैक्सेस पेड टू द होस्ट गवर्नमेंट। अब होस्ट गवर्नमेंट कौन सी है? जहां पर FDIs काम कर रही हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। अब कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द सब्सिडरी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्सेस। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डबल टैक्सेशन होती है कंपनीज की। कंपनी एक तो खुद टैक्स पे करती है, अब जो अर्न होता है वो फिर जब ओनर्स को पे किया जाता है, ओनर्स भी उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। दैट इज ऑलवेज अ डबल टैक्सेशन इन कॉर्पोरेट लेवल। अब जब कंपनी ने, सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो दैट वाज सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्सेस। अब यहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टोयोटा मोटर्स पाकिस्तान ने टैक्स पे कर दिया। एक सिचुएशन यहां पर कंप्लीट होगी। देन आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज टू सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग्स बाय द सब्सिडरी। कंपनी अपने पास रिटेन कर लेगी जो उन्होंने अर्न किया। फॉर एग्जांपल दे हैव अर्न $5 million, 5 million rupees, वट एवर द अमाउंट दे हैव अर्न। अब कंपनी अपने पास एज ए रिटेन्ड अर्निंग उसको रख लेगी। दैट वुड नॉट बी रिमिटेड बैक टू द पेरेंट कंपनी, उसको अपने पास नहीं रखा जाएगा। दैट वुड बी केप्ट बाय द सब्सिडरी इन द होस्ट कंट्री, वो यहां पर रख लेंगे उसको, रिटेन्ड बाय द सब्सिडरी। तीसरा क्या है? कैश रिमिटेड बाय द सब्सिडी विद होल्डिंग टैक्स पेड टू होस्ट गवर्नमेंट व्हेन दे आर कीपिंग द अमाउंट। अब यहां पर उन्होंने होल्ड कर ली जो अर्निंग्स थी उनकी, दैट वाज होल्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी, तो दे हैव टू पे विद होल्डिंग टैक्स पेड टू द होस्ट गवर्नमेंट। अब उनके पास ये विद होल्डिंग टैक्स है, दे हैव टू पे विद होल्डिंग टैक्स। अगर नहीं देन this amount is transferred to the Japanese company in Japan. So ये पूरे का पूरा सिनेरियो होता है when they are remitting subsidy earnings to the parent company.
इतना बड़ा ये सिनेरियो नहीं है, बेसिकली समझने की बात है कि कैश फ्लोज दैट इज जनरेटेड बाय द सब्सिडरी, तो वो सब्जेक्ट टू टैक्स होता है, होस्ट गवर्नमेंट को उसके टैक्स पे किए जाते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है उसके दो सिनेरियोज हैं, या तो सब्सिडरी अपने पास रख लेती है या फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है पेरेंट कंपनी की तरफ। अब अगर अपने पास रख लिया तब भी उसने टैक्स देना है, अगर उसने रेमिट करना है तब भी टैक्स पे करना है। विद होल्डिंग टैक्स कम होता है, ट्रांसमिशन जो आप ट्रांसमिट करते हैं, जो आप दूसरे कंट्री के अंदर अपनी करेंसी को जो अर्निंग्स है उनको भेजते हैं, तो उसके ऊपर आपको हाई टैक्स पे करना पड़ता है। रीजन क्या होती है? ताकि करेंसी को एनकरेज ना किया जाए दूसरे कंट्री के अंदर भेजने में। सो दैट वाज अ बेसिक point which was being discussed when you are remitting earnings to the parent company. Again, a parent's perspective. A parent's perspective is appropriate when evaluating a project, since any project that can create a positive net present value for the parent should enhance the firm's value. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव में कि ये एप्रोप्रिएट होता है व्हेन एवेल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट को आपने एवेल्यूएट किया, अब आपको पता है कि जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। वो किस तरह कैलकुलेट की जाती है वो थोड़ा सा एक मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, आई विल शो यू इन द लेटर स्लाइड्स, कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी जब पॉजिटिव निकली इसका मतलब यू आर अर्निंग मोर देन योर इन्वेस्टमेंट। जब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इट मीन्स योर अर्निंग्स आर मोर देन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो इट मीन्स कि आपकी जब अर्निंग हाई है तो आपकी फर्म्स की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। However, one exception to this rule may occur when the foreign subsidy is not wholly owned by the parent. अब यहाँ पे फर्क यह आ जाता है कि we discussed previously, आपके पास एक wholly owned है, एक partially owned होती है। अब फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी थी उसको अक्वायर किया, अब 40% किसी और के पास शेयर्स हैं और 60% पेरेंट के पास हैं। रिलेशनशिप तो बन गया, यहाँ पे पेरेंट है, अब सब्सिडरी ये होगी इसकी 60% वाली, लेकिन जो 40% है यहाँ पर तो जाहिर है ये भी तो शेयर होल्डर्स हैं। तो अब इसका मतलब ये कि सारे के सारे डिसीजंस इसके मुताबिक नहीं लिए जा सकते। यू हैव टू डिसाइड अबाउट 40% एज वेल। जिनके पास 40% शेयर्स हैं कंपनी के, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरूरी है। उनके भी दरमियान में कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस हो सकती हैं। सो इनपुट फॉर मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, वो क्या होती हैं आपकी इनपुट्स, उसमें आपने क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी होती हैं, कौन कौन सी चीजें आपने देखनी होती हैं। फॉलोइंग फोरकास्ट आर यूजुअली रिक्वायर्ड, वो कौन कौन से हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितनी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है। देन कंज्यूमर डिमांड, यू आर गोइंग फॉर FDIs इन पाकिस्तान, डू पाकिस्तानी पीपल हैव अ डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट विच यू वांट टू इनिशिएट। देन प्रोडक्ट प्राइस, उसकी प्राइस कितनी रखनी है आपने, यू हैव टू टॉक अबाउट इट। देन वेरिएबल कॉस्ट, उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आपकी इनकर होगी। These are the points you must keep it in your mind when you are making your capital budgeting for multinational corporations. You are making FDIs, आपने initial investment करनी है, तो आपने कितनी अमाउंट, आपने जो मेथड्स तो थे वो चेक कर लिए। You have a payback period, you have internal rate of return, you have a net present value, ये चीजें तो आपने कैलकुलेट कर ली हैं। ओके, what is a consumer demand? Do the consumer have a demand for your product? कितनी है? Sometime it does happen that when you are exporting products, okay, there is a demand, but you export the products in a limited quantity. But when you make an investment, when you make FDIs and start producing products on that country, it doesn't mean that you will have a same increasing demand for your product. जरूरी तो नहीं है कि आपके लिए वो इसी तरह होगा। जो लिमिटेड आप बना रहे थे वो डिमांड थी, जब आप एक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हो सकता है वो एक्सेस डिमांड ना हो आपकी प्रोडक्ट्स की। सो दैट कुड बी अ क्रिटिकल थिंग फॉर यू। देन व्हाट प्राइस यू आर एलोकेटिंग फॉर योर प्रोडक्ट। इफ इट इज अ हाई प्राइस्ड, ऑफ कोर्स दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आप प्राइस लो रखेंगे, यू माइट नॉट बी एबल टू मीट योर एक्सपेंसेस।
So what price should be for your product when you are launching in the other country? Then variable cost. We already discussed about fixed cost and variable cost. Fixed cost in total remain fixed, whereas variable cost per unit remain constant. अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? प्रोडक्शन बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट कांस्टेंट है, वो भी बढ़ेगी। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी देखना है। आपकी वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है? आपका रॉ मटेरियल है, जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब वो रॉ मटेरियल आपका कहाँ पे अवेलेबल है? विल यू इंपोर्ट इट और दैट इज अवेलेबल इन द सेम कंट्री? तो आपने इसके बारे में भी सोचना होगा। देन फिक्स्ड कॉस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल रिमेन फिक्स्ड, बट इट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन पर यूनिट। तो जितनी प्रोडक्शन आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही कम होती जाएगी। देन प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका लाइफ टाइम कितना है। ये ना हो कि आपने पे बैक पीरियड आपने काउंट कर लिया कि 5 इयर्स, हो सकता है 5 इयर्स में आपकी मशीन ही खत्म हो जाए, उसकी जो एक वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है प्रोडक्शन की, वही खत्म हो जाए। तो फिर आपकी इनिशियल जो आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट की उसका फायदा क्या होगा? क्योंकि आपकी तो 6 साल के बाद एक्चुअल अर्निंग स्टार्ट होनी है, अभी तो आप रिकवरी कर रहे हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली अ लाइफ टाइम ऑफ योर प्रोजेक्ट? तो इस चीज को भी आपने ख्याल में रखना होता है। देन सॉल्वेज वैल्यू, डू यू हैव एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सॉल्वेज वैल्यू? डू यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट? सॉल्वेज वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन के बारे में तो आपको पता है कि व्हाट इज अ डेप्रिसिएशन, कि योर मशीन्स, योर प्लांट डेप्रिसिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप उसको कंज्यूम करते रहते हैं, वो खर्च होता रहता है, एंड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स एन एब्सोल्यूट फॉर्म दैट इज नॉट नो मोर यूजेबल। उसका एक लाइफ होती है। एक प्लांट है, उसने 10 साल चलना है तो वो 10 साल चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो आपने फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स के लिए कोई प्लांट लगाया, आपकी रिकवरी टोटल हो गई 6 ईयर्स में, 4 ईयर्स में अब आप अर्न करना शुरू हो गए। अब राइट आफ्टर 10 ईयर्स आपका वो जो प्लांट था वो पूरे का पूरा एब्सोल्यूट हो गया। दैट इज नॉट यूजेबल फर्दर, दैट इज नो मोर यूजेबल इन 11th ईयर। सो देर इज ऑलवेज अ सॉल्वेज वैल्यू। वो अगर लोहा भी है तो दैट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, उसको सेल किया जा सकता है। हो सकता है वो अभी यूजेबल हो लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी ना रही हो, लेकिन आप किसी और कंपनी को उसको सेल कर दें जो मतलब इतनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना बनाती हो, तो फिर उसकी सॉल्वेज वैल्यू हो सकता है कि स्टिल हो। तो फिर आपने 4 इयर्स में अर्न किया, ये आपका पे बैक पीरियड था, दैट वाज योर पे बैक पीरियड 6 years, 4 years was your earning period। आपकी एक तो ये अर्निंग्स प्लस आपकी सॉल्वेज वैल्यू, ये दोनों ऐड होके अब आपको इन टोटल रिटर्न दे रही हैं। वो हो सकता है आपने ये सारी की सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी इन सब को आपने चेक किया तो दैट वाज 1 बिलियन। अब ये 1 बिलियन की रिकवरी आपकी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आपको 6 इयर्स में हो चुकी है। अब नेक्स्ट 4 इयर्स में आपकी नेक्स्ट अर्निंग्स हो रही हैं और उसके बाद आपका हो सकता है 1 मिलियन का ये जो बाकी आपकी एब्सोल्यूटेड मशीनरी है वो भी सेल हो जाए, तो ये भी आपका फिर गेन ही होगा। दैट वुड आल्सो बी योर कैपिटल गेन्स। तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशंस व्हेन यू मेक कैपिटल बजटिंग। अब ये सारी चीजें आपने डिसाइड की, उसके बाद आपने देखा कि ओके शुड वी गो फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट। ये सारी की सारी बातें आपकी ये आपको बता रही होती हैं, कैलकुलेशंस का पार्ट होता है कि वेदर वी शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट और नॉट। मैंने आपको बताया पे बैक पीरियड, मैंने आपको बताया अनदर मेथड दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू।
मैंने आपको बताया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. दीज आर द मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर कैपिटल बजटिंग. क्या आपको बताता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको कितना होगा. जब आप कैपिटल बजटिंग करते हैं तो ये आपके जो 7 पॉइंट्स हैं आप इनका ख्याल रखते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी कि नहीं होगी, प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम कितना, और एट द एंड व्हेन योर मशीनरी योर इन्वेस्टमेंट इज एब्सोल्यूटेड देन ये कितने में सेल हो सकती है. तो वो भी आपका कैपिटल गेन होगा, एक्सेस अदर देन योर कैलकुलेशंस. देन फॉलोइंग फोरकास्ट आर यूजुअली रिक्वायर्ड. वो कौन कौन से हो सकते हैं. आपके जो पीछे थे वो आपके इनपुट्स थे. अब यहां पर अगेन दीज आर इनपुट्स बट द फॉलोइंग फोरकास्ट आर आल्सो रिक्वायर्ड. वो क्या होता है, फंड्स ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है जो मैंने आपको पहले बताई है, जो एक मैंने आपको एक चार्ट शो किया था. फंड्स ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें लेकिन वापस नहीं ले जा सकते, आपको वहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. इट मीन्स कि आपने जो अर्न करना है वो वहीं पर अर्न करना है और वहीं पर इन्वेस्ट करना है, आपने होल टाइम वहीं पर रहना है. फिर देन व्हाट आर बेसिकली द टैक्स लॉस. कितने % आपको टैक्स वहां पर देना पड़ता है. एक वो जो आप अर्न करेंगे, एक वो जो अगर आप वापस अपने पेरेंट कंपनी के अंदर लेके जाएंगे. दैट इज ऑल्सो पार्ट. देन एक्सचेंज रेट्स, वही चीज जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की है कि एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कि व्हेन यू मेक अ डिसीजन अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स. देन required rate of return, as I already told you, I think you don't need to go in the details. कि आप एक तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड आप चाहते कितना है कि कितना आपको रिटर्न उसका मिले. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड व्हेन यू आर मेकिंग अ कैपिटल बजटिंग. सो कैपिटल बजटिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स दैट डिजर्व कंसिडरेशन. आपने कैपिटल बजटिंग करनी है तो आपने लाजमी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए आपको कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है. और ये सारे जो हमने पीछे पॉइंट्स देखे हैं, दीज आर ऑल कंसिडर्ड. सो वन कॉमन मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द एनालिसिस इज टू एस्टिमेट द कैश फ्लोज, क्या उसकी कैश फ्लोज होंगी, एंड देन सॉल्वेज वैल्यू टू बी रिसीव्ड बाय द पेरेंट एंड कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. अब यहां पर आपको क्या बता रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कर दी लेकिन कैश फ्लोज और सॉल्वेज वैल्यू जो पेरेंट ने रिसीव करनी है, अब 10 ईयर्स तक रिसीव करनी है पेरेंट ने. एक तो कैश फ्लोज, देन उसकी सॉल्वेज वैल्यू, ये उसने रिसीव करनी है. ये इंपॉर्टेंट है किसी भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए. सो दैट इज व्हाई दे कंप्यूट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. वो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. नेट प्रेजेंट वैल्यू इज यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर द प्रोजेक्ट. इस नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है. इट मीन्स इट शोज द डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. आपने आउटफ्लो की, आउटफ्लो कौन सी थी, दैट वाज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वेयर एज योर इनफ्लो वाज योर टाइम टू टाइम इनफ्लोज आफ्टर 1 year, 2nd year, 3rd year, 4th year, up to 10 years. So these are your inflows. अब आपने उनको कैलकुलेट किया. एक आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो आउटफ्लो, इनफ्लोज आपकी हर साल की, वो आपने कैलकुलेट की. इन दोनों को इकट्ठा किया, अब देखा कि आपकी इसमें से पॉजिटिव कितनी है, नेगेटिव कितनी है. तो अब आपकी पॉजिटिव है नेट प्रेजेंट वैल्यू, मींस के डिफरेंस बिटवीन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, देन यू विल गो फॉर द प्रोजेक्ट. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस इज सेंसिटिव टू द रिलायबिलिटी ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज दैट एन इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोजेक्ट विल यील्ड, जो वो रिटर्न देगा उसको. सो दिस इज बेसिकली अ फार्मूला फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कैपिटल बजटिंग के लिए किया जाता है. सो इनिशियल आउटलेस, इफ यू लुक एट this is a minus sign. Initial outlays means के initial investment that you are making. So
आपके पास प्लस सम ऑफ नेट मींस आपके पास जो ईयर्स हैं और टी आपका जो टाइम पीरियड होता है, कैश फ्लोज इन द प्रोजेक्ट टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ऑफ टी प्लस सॉल्वेज वैल्यू। ये आपके पास ये तीन चीजें हैं, 1 दैट इज 1 2 एंड 3। ये तीन आपके पास चीजें, तीन कंपोनेंट्स हैं। ये आपके पास आउटफ्लोज, 1 this is your outflow, this one is your inflow, and this one is also your inflow. Now you need to check whether it is positive or negative. So K, what says K? This one K, the required rate of return on the project. आप कितना रिक्वायर कर रहे हैं, 5%, 10%, 15%, कितना रिक्वायर कर रहे हैं आपको। एंड द प्रोजेक्ट लाइफ टाइम इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स, 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा इतना ही उसका लाइफ टाइम भी ज्यादा होगा, जितना छोटा प्रोजेक्ट होगा उतना भी लाइफ टाइम उसका कम होगा। नाउ यू नीड टू सी वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके पास आउटफ्लो कितनी, फिर आपने देखा कि आपकी एनुअली इनफ्लोज कितनी हो रही है, एंड राइट आफ्टर द लाइफ टाइम आप देखेंगे कि आपको फिर सॉलिड वैल्यू के थ्रू कितना इनफ्लो हुआ। अब आपके पास अगर इन केस पॉजिटिव है तो आप प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे, अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर आप नेगेटिव है तो आप उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं जाएंगे। ये छोटा सा एक आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का मैंने फार्मूला बताया। कैश फ्लोज इन द पीरियड टी, किस टाइम के लिए कह रहे हैं, डिवाइड बाय 1 प्लस के, के मींस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, देन प्लस सॉलिड वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस के मींस के वही अगेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और एन मींस के कितने लाइफ टाइम के लिए, 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, कितना टाइम पीरियड है उसका। सो दैट इज बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसमें डिफरेंट आपके पास और भी फार्मूलाज अवेलेबल हैं, बट आई हैव चोजन फॉर यू दैट इज लिटिल बिट सिंपल। तो आप इसको खुद इसका अंदाजा लगाएं कि सिंपल आपके पास एक इन्वेस्टमेंट जो आपकी आउटफ्लो है, बाकी इसके अलावा दोनों कंपोनेंट्स आपके वो इनफ्लोज बता रहे होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द कैलकुलेशंस अबाउट इट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि आउट ऑफ other methods for calculating your capital budgeting for the appraisal of your investment, you have different methodologies. Out of these methodologies you have a net present value as well. So if net present value is greater than 0, the project can be accepted. ये वो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपके पास ये जो पॉजिटिव आएगा, आपके पास फॉर एग्जांपल आपने आउटफ्लो किया फॉर एग्जांपल 1000, इन जनरल ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, और इसमें 800 आपका इनफ्लो हुआ लाइफ टाइम के लिए जो आपके 10 इयर्स थे, और इसमें 400 की उसकी सॉलिड वैल्यू थी। अब ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब 200 आपके पास नेट इनफ्लोज आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मींस कि योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, सो इट इज ग्रेटर देन 0, सो वी विल एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। सो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट our this lecture. Basically we started our lecture from capital budgeting. What is the capital budgeting? When you make an appraisal for the long term investments, they have a more than a period of 1 year. इसमें जो फ्यूचर पीरियड होता है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, मे बी 10 years, 20 years, 30 years, 50 years, it doesn't matter at all, but at least you have a minimum of 1 year. इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं. जब आप FDIs करते हैं तो देन यू मेक इन्वेस्टमेंट फॉर मे बी 5 years. तो कैपिटल बजटिंग दैट टेल्स यू दिस इज एन अप्रेजल ऑफ योर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ प्रोजेक्ट्स. इसके लिए आपने मुख्तलिफ methodologies देखी थी, हाउ टू मेक अ कैपिटल बजटिंग. यू हैड एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इसके अलावा अकाउंटिंग के भी थे, इसके अलावा सॉल्वेज भी आपके पास methodologies थे, बट वी हैव टॉक्ड नॉर्मली अबाउट net present value, payback period, and then we have talked about initial rate of return. We had also adjusted initial rate of return, वो भी था आपके पास, but we focused on it. Then we have seen a subsidiary versus a parent perspective.
what is basically a subsidiary perspective, either the investment would be made by the subsidiary, और हमने इसमें ग्रीन फील्ड्स का भी देखा था और एक्विजिशंस के बारे में भी देखा था कि अगर आपकी ऑलरेडी फर्म्स काम कर रही हैं वहां पे, तो फिर उन्होंने अगर प्रोजेक्ट करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगी, सब्सिडरी के पास होगी या पेरेंट कंपनी के पास होगी। अगर सारी फंडिंग्स पेरेंट्स ने करनी है तो फिर उसके लिए वो फीस भी हाई चार्ज करेंगे सब्सिडरी कंपनी से, और अगर सब्सिडी ने करनी है तो फिर वो उसकी जो ट्रांसमिशन है अमाउंट की, अमाउंट ट्रांसमिट करनी है आपने, रिमिट करनी है, तो वो करनी है, अपने पास रखनी है, क्या उसके बारे में करना है। सो वी हैड आल्सो कंप्लीट स्लाइड अबाउट इट, रिमिटिंग सब्सिडरी अर्निंग्स टू द पेरेंट कंपनी। दो पर्सपेक्टिव हमने देखे थे, वन वाज कीपिंग रिटेन अर्निंग्स बाय द सब्सिडरी आर रिमिटिंग द अर्निंग्स टू द पेरेंट कंपनी, ये दोनों पर्सपेक्टिव देखे थे। अब यहाँ पर इन पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए देखना था कि व्हाट इज एक्चुअली टैक्स रेट्स। आप अगर अपने पास ही अर्निंग्स रखते हैं तो वी हैव अ डिफरेंट टैक्स रेट्स। व्हेन यू रिमिट द अर्निंग्स टू द पेरेंट कंपनी देन दे हैव अ डिफरेंट टैक्स रेट्स, वो टैक्स रेट्स नॉर्मली हाई होते हैं। तो द रीजन इज दैट कि दे द कंट्रीज डिसाइड टू कीप दिस मनी in their own countries, they make their own investments, extend their business operations, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, उससे फ़ायदा ये होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, अपना रॉ मटेरियल यूज़ होगा। और इसके साथ ही मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्पेन की, कि स्पेन ने एफडीआईज को इनवाइट तो किया, एक्सेप्ट किया, बट दे हैड अ रिस्ट्रिक्शन नॉट टू रिमिट दिस मनी बैक देयर होम कंट्रीज। वहीं पर इन्वेस्टमेंट करें, हाँ प्रोडक्शन करें, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट से आपके पास जो फंड्स हैं इनफ्लोस होगा, आपके पास आउटफ्लोज नहीं होगा। प्रोडक्शन आपकी अपनी कंट्री के अंदर हो रही है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फंड्स आपके पास वापस आ रहे होते हैं। सो दे हैड टू मेक डिसीजंस इस तरह की कि आपने अब फंड्स अपने पास ही रखने हैं, सब्सिडरी के पास ही रहने देने हैं कि वो फर्दर इसको एक्सपैंड करे। उसका क्योंकि वो एनालिसिस करते हैं कि हमें वापस फंड्स मिलेंगे तो ज्यादा बेहतर है या कि सब्सिडी अपने पास रखे। ऑल्दो वी ऑलरेडी नो अबाउट इट कि पेरेंट कंपनी ओन्स द सब्सिडी, लेकिन वो अपने पास पैसे लेकर आना चाहेंगे या सब्सिडी के पास ही रहने दें। सो वी हैड दिस सिनेरियो अबाउट इट, देन वी हैव सीन इनपुट फॉर मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। आपके पास इनपुट्स में आपने देखा था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं आप लोग, देन यू मेक एन एनालिसिस ऑफ योर demand for the products, price of the products, fixed cost, variable cost, salvage value, क्या है उसकी salvage value और कितना रिटर्न आपको मिलेगा जब आप उस प्रोजेक्ट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसको सेल आउट करेंगे, जो आपने प्लांट लगाया उसको सेल आउट कर रहे होंगे, तो फिर क्या आपको जो इन रिटर्न अमाउंट मिलेगी। वी हैड सम अदर पॉइंट्स एज वेल, ये चीजें सामने रखी जाती हैं। वी हैड सीन मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, इसमें आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला था। नेट प्रेजेंट जो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपने तीन कंपोनेंट्स देखे, वन वाज इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट हैड एन आउटफ्लो, उसके बाद आपने देखा था इनफ्लोज की सूरत में जो आपकी रेगुलर अर्निंग्स हो रही हैं आपको वो, और फिर प्लस इसमें आपने देखा था इनफ्लोज का जो सॉल्वेज वैल्यू है जो आप सेल आउट कर रहे होते हैं। इफ योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव देन इट मीन्स यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। इफ योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0 यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट। ये हमने इन जनरल एक फार्मूला चेक किया था और उसमें हमने उसको डिस्कस किया था। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर, लेक्चर नंबर 11। Inshallah, in my next lecture, lecture number 12, we will discuss the further components of capital budgeting। वो complete हम चार्ट देखेंगे कि उसमें कौन कौन से components होते हैं जब आप capital budgeting कर रहे होते हैं, और हर एक कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये आपकी इनफ्लोज में इंक्रीज करते हैं या आपकी आउटफ्लोज में इंक्रीज करते हैं, जो नेट रिजल्ट्स आपके क्या रहते हैं। सो आई होप I kept my this lecture up to capital budgeting, discussion about the capital budgeting, inputs about the capital budgeting, and then subsidiary versus parents perspective, that either this amount should be kept in the home country, host country, or remitted back to the parents company. So that was all about for today's lecture. Inshallah we will come up with the new points, new discussion topics
in capital budgeting. So up to that, thank you very much. Take care and Allah Hafiz.